Good morning, everyone. I hope you all remember that we have started with chapter 13, magnetic effects of current. And in this chapter, two of the topics I taught in the last class through videos and PowerPoints. First was property of bar magnet. I hope you all remember the properties of bar magnet. First, attractive property, that a magnet always attract iron particles. Then second, a magnet when suspended freely always align itself in Earth's north-south axis. North and north repel, north and south attract, and whenever a magnet is cut in two parts, again two magnets are formed. Then we did the properties of magnetic field lines. I hope everybody has started writing the notes. I sent it last time. There are two poles in a magnet, and magnetic field lines outside the magnet always move from north to south and inside south to north. No two field lines can ever intersect each other, and closer the magnetic field line, stronger is the magnetic field. I hope you remember these two topics. You must revise. Now I come to the base of the chapter. If you look at the name of the chapter, children, it is magnetic effects of current, right? In chapter 12, electricity, children, we did what are the heating effects of current. Like whenever we pass current, geyser becomes hot, heater becomes hot, microwave becomes hot, electric kettle becomes hot. That is, we have done heating effects of current. Now children, in this chapter we'll start with magnetic effects of current. For that there was a scientist, H.C. Oersted. Children, he was a physics professor. One day he was teaching in his class and he observed that there was a wire through which current was passing, और उसी wooden table पे there was a magnetic compass, and he kept a compass near it, and by chance when current was passed through the wire, compass was kept there. He saw that there is deflection in the magnet. Magnet हिल रही है, right? Then he reversed the current, and when he reversed the current, he found that deflection in the magnet also got reversed, right? तो ऑयस्टर्ड ने देखा कि करंट के आसपास क्या पैदा हो गई है, मैग्नेटिक फील्ड. यानी ही सेड दैट करंट कैरिंग कंडक्टर इज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड. ये ऑयस्टर्ड एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए मैं भी आपको एक यूट्यूब की वीडियो भी भेजूंगी, राइट? तो ऑयस्टर्ड ने क्या कहा? ऑयस्टर्ड सेड, children, Oersted said that current carrying conductor is associated with magnetic field. यानी करंट के आसपास क्या पैदा हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड. पहली बार कोई व्यक्ति था जिसने रिलेट किया कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड आपस में एसोसिएटेड है. हु वाज ही? ऑयस्टर्ड. तो पहले मैं आपको एक दो चीजें मैग्नेटिक फील्ड की बता दूं, फिर मैं आपको कुछ रूल बताऊंगी. बच्चा पार्टी, अगर मुझे सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करना हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट. मान लो मैं यहां एक मैग्नेट रख दूं और पाकिस्तान में जाके एक पेन रख दूं, तो क्या वो पेन इस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेगा? नो. इस मैग्नेट के आसपास एक ऐसा रीजन है विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा? इट इज स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच its influence can be felt. जिसके आसपास वो अपना इन्फ्लुएंस दे सकती है, that region is called magnetic field. Space around a magnet within which its influence can be felt is called
its magnetic field, right? और सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है बेटा B। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, राइट? और यानी इसके ऊपर बेटा कि एरो का निशान लगाते हैं। ये देखो, कोई भी क्वांटिटी जिसके ऊपर आप एरो बना देते हो एक्चुअली वो वेक्टर क्वांटिटी है। यानी मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है? इसके अलावा मैं आपको बता दिया मैंने, सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी है, कैपिटल बी लिखते हैं इसे। इसके अलावा एक और बात समझ लीजिए आप, एसआई यूनिट मैग्नेटिक फील्ड मेजरेबल क्वांटिटी है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपकी किताब में नहीं है पर आपको पता होना चाहिए, इज टेस्ला। TESLA इसे लिखते हैं टेस्ला। तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, राइट? चलिए, अब मैंने आपको कहा कि ऑयस्टर ने क्या कहा, करंट कैरिंग कंडक्टर इज एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। करंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है और इसको जोड़ने के लिए कुछ रूल पढ़ाऊंगी, जिसमें एक रूल है जिसे कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आप सब मेरे साथ अपना हाथ से मूवमेंट से चेक करेंगे। राइट हैंड थंब रूल क्या है? एवरीवन अपना राइट हैंड, सब बच्चे अपना राइट हैंड ऐसे रख लो मेरे साथ। चलिए रखिए इस तरह से कि थंब बाहर निकाल लो और उंगलियां, फिंगर्स शुड क्लोज इन वन डायरेक्शन। एवरीबडी कीप योर राइट हैंड विद मी लाइक दिस। पकड़िए, चलिए, गुड। जैसे तुम अपने दोस्तों को दिखाते हो ना, जैसे थम्स अप, है ना, ऐसा साइन बनाओ, अंगूठा ऊपर जा रहा है। बच्चा पार्टी, आपके राइट हैंड में थंब इज द डायरेक्शन ऑफ करंट and the direction in which fingers close. The direction in which fingers close is the direction of magnetic field. जैसे फिलहाल ये जो थंब है ये अपवर्ड जा रहा है ऊपर की तरफ। अगर थंब अपवर्ड जा रहा है तो जरा अपनी उंगलियां देखो, उंगलियां कहाँ मुड़ रही हैं आपकी? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी से उल्टी डायरेक्शन में। तो देखो बच्चों, अगर करंट अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। अब ऐसे करो जैसे तुम अपने दोस्तों को चढ़ाते हो ना, ऐसे नीचे करके हाथ ऐसे करो। जब आप अपना हाथ नीचे ले जा रहे हैं, थंब डाउनवर्ड जा रहे हैं, अब उंगलियां बंद करो और घड़ी देखो साथ साथ। अगर थंब डाउनवर्ड जा रहा है तो फिंगर्स क्लॉकवाइज मुड़ रही हैं। एवरीबडी सी विद मी, कैन यू सी माई हैंड? इफ करंट इज गोइंग डाउनवर्ड तो उंगलियां जा रही हैं एंटी क्लॉकवाइज, और अगर करंट ऊपर आ रहा है तो उंगलियां कैसे आ रही हैं? क्लॉकवाइज। तो राइट हैंड थंब रूल कहता है थंब ऑफ राइट हैंड पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट and the direction in which fingers close is the direction of magnetic field. Right, children? First part, if current is going in upward direction, अगर करंट ऊपर जा रहा हो, इफ करंट इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, अगर करंट ऊपर जा रहा है, देन मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन। कैसे? देखो, बना के दिखाती हूं आपको। अगर करंट अपवर्ड जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनानी है? ऐसे देखो, सब बच्चे मेरे साथ बना के
ये मैंने कैसे बना दिया है, एंटी क्लॉकवाइज। चेक करो, ठीक है। अगर करंट अपवर्ड, तो देखो घड़ी ऐसे उल्टी बना दी मैंने, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज। और सेकेंड, इफ करंट इज गोइंग डाउनवर्ड, जो बच्चे लेफ्टी हैं वो ध्यान से राइट हैंड ही उठाना है, कहीं लेफ्ट उठा के देख रहे हो। इफ करंट इज गोइंग डाउनवर्ड, then magnetic field is clockwise in direction. Right बच्चा पार्टी, look at it very carefully. अगर मैं करंट डाउनवर्ड बना दूं, करंट का सिंबल याद है ना, आई है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनानी है, देखो ऐसे, घड़ी ऐसे चलती है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज। पहले तो दोनों के सिंबल देखो, करंट का सिंबल आई है, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बी है। अगर करंट अपवर्ड जा रहा है, अपने सब बच्चे अपने राइट हैंड को उठा के देखो रिकॉर्डिंग देखते हुए, ठीक है। अगर करंट अपवर्ड तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, और डाउनवर्ड तो क्लॉकवाइज। अब मैं आपको इसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से करके दिखाती हूँ एक क्वेश्चन में। मान लो क्वेश्चन आ जाए बेटा कि a straight conductor is kept in such a way that current is going towards west. Current is going towards west. Find magnetic field. Number 1, at a point above the wire. बहुत ध्यान से समझेंगे और मेरी रिकॉर्डिंग के साथ साथ, चाहे को जरूरत पड़े बीच में रिकॉर्डिंग रोक रोक के चेक करके देखो। एट अ पॉइंट अबव द वायर, सेकेंड एट अ पॉइंट बिलो द वायर। चलिए आइए, पहले मैं तुम्हें ऐसे सिखाती हूँ। A straight conductor is kept in such a way that current is going towards west. तो चलो बच्चों पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लो। दिस इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पहले मुझे बताओ सेटिस्फाइड विद दिस? आप भी मेरे साथ अपनी कॉपी में बेटा बना लो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। टेक अप योर कॉपी। इस चैप्टर में अगर आप कॉपी में मेरे साथ नहीं बनाएंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। चिल्ड्रन मेक विद वी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बना लिया आपने? चलिए गुड। अब ये कह रहा है कंडक्टर इस तरह से पड़ा है, मान लो जी ये कंडक्टर है बच्चों, ठीक है। ये इस तरह से पड़ा है कि करंट वेस्ट में जा रहा है, ये जा रहा है करंट इधर, ठीक है, करंट यहां जा रहा है। तो पूछता है एक पॉइंट इसके नीचे है, मतलब कॉपी के नीचे समझो चला गया, और एक पॉइंट इसके ऊपर है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। चलो आओ, राइट हैंड थंब रूल लगाना है। थंब इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो तुम मेरे साथ ये मान लो ये कंडक्टर, ये पेन है, ये मैंने ऐसे रखा है, इधर जा रहा है ये ऐसे पकड़ लो, पकड़ लिया। आप सब भी अपना कोई पेन या कुछ ऐसा पकड़ ले, पेंसिल, और आपका थंब देखो वेस्ट की तरफ जा रहा है। चिल्ड्रन लुक विथ मी, थंब इज गोइंग टूवर्ड्स वेस्ट। अब वो पहला पॉइंट जो मैं पहले बिलो वाला समझाती हूँ, आपने नीचे जाना है कॉपी के, ठीक है, ये आपने को पेंसिल पकड़ ली। जब आप वेस्ट में जा रहे हैं, अगर आप नीचे जाना चाहें तो नीचे जाने के लिए उंगलियां कैसे मुड़ रही हैं, देखो, नॉर्थ टू साउथ। एवरीबडी, इफ आई कीप द थंब इन वेस्ट और मुझे कॉपी के नीचे जाना है बिलो, तो देखो मेरी उंगलियां कैसे मुड़ेंगी, नॉर्थ टू साउथ। और अगर अबव ऊपर आना हो, देखो अगर मैं अपना हाथ ऐसे लाऊं ऊपर, ऐसे, लुक एट दिस नाउ, करंट देखो वही जा रहा है, थंब वहीं जा रहा है वेस्ट में, लेकिन इस बार उंगलियां लानी थी अबव, तो ये कैसे मुड़ रही हैं, साउथ टू नॉर्थ। तो यानी अबव में कहाँ गया, साउथ टू नॉर्थ, और बिलो में कहाँ गया, नॉर्थ टू साउथ। आप सब बच्चे अपने हाथ में पेंसिल पकड़ के देख लें, ये वेस्ट में जा रहा है। जब आपको पेंसिल नीचे रखनी है, नीचे ले जानी है, तो कैसे जाऊंगी, देखो, नॉर्थ टू साउथ, और ऊपर लानी है तो कैसे लाऊंगी, साउथ टू नॉर्थ। That is how we make such directions, right? Everybody will revise till here, और I am sending a video to show Oersted experiment, वो भी आप देख लीजिए।
देन विल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम. इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2-3 बार रिकॉर्डिंग देखिए ताकि आपको बात समझ में आए. Am I clear, children? Now see Oersted experiment and tell me in group if you have any doubt. Goodbye for today.